नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय राष्ट्रपति ने कहा, हमें चुनाव उत्सव में भाग लेकर दुनिया में लोकतंत्र के आदर्श को मजबूत बनाना है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर का किया उद्घाटन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। अपने आह्वान में माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि हम सब इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूती प्रदान करें। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल से शुरू हो रहा है। इस चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देशवासियों को अपना संदेश देते हुए कहा कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करे। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is. The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. When I was young and I crossed the age of eligibility to vote, I remember the excitement in my heart that for the first time I would be queuing up at the polling booth and exercising my franchise. Getting that dot on the finger when I voted aroused tremendous feelings of patriotism and association with the nation and me. Sometimes when you have an ink mark on your hand, you're wondering when that ink mark will go away. But this is one ink mark which I never wanted to go away, because I felt that I was a proud demonstrator of the fact that as an Indian citizen, having crossed the age of eligibility, I could exercise my vote, and I had in fact exercised my vote. So the day of election has always aroused wonderful feelings. The feeling that though I may be one in this big line of people who have come to vote, each of us counts as the same citizen with the same value. So our Constitution and our law provides for one citizen, one vote, and one value. I think that's the great tenacity and the power of our nation as a constitutional democracy. When I became a lawyer and I had to run around in search of work in different places, both in Mumbai and outside,
I was always worried that I should not be missing that one important day when I have to cast my vote. And I never missed that duty and obligation which is cast on me as an Indian citizen. So likewise, I would request every one of you, please do not miss this opportunity to vote responsibly as citizens of our great motherland. 5 minutes every 5 years for our nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने देश के मतदाताओं से बड़ी संख्या में चुनावी पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण है। मतदान के फर्स्ट फेज का दिन आने वाला है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की है। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है, या जो PWD मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं। यह सच है कि गर्मी का मौसम है। आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा। हमारे महान लोकतंत्र में चुनाव आप सबका है, पसंद आपकी है। आप अपना संसद और 4 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य चुन रहे हैं। आप 18वीं लोकसभा बना रहे हैं। आप सरकार तय करेंगे। आप यह सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गांव या कस्बे के लिए और निश्चित रूप से देश के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मतदान केंद्रों पर जाते समय जैसे ही आप वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे, आपको इस शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का बराबर का एहसास होगा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। संविधान ने हर किसी को एक वोट की ताकत दी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूँ, मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज़ के रूप में समझता हूँ जो कमज़ोर लोगों को भी मजबूत लोगों के समान अवसर देता है। और अपने एक वोट की इस ताकत को कभी कम मत आंकना। ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी महत्वपूर्ण मुकाबले में एक वोट से ही हार जीत हुई, सरकारें बनी और गिरी। और हमने इन चुनावों को चुनाव का पर्व, देश का गर्व कहा है। हमें लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने घरों से बाहर आएं और मतदान करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करें। हमारे एम्बेसडर्स और इन्फ्लुएंसर्स बने। मैं युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने को गौरवान्वित महसूस करें। इसी के साथ धन्यवाद। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट कोर्ट में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर स्थापित किया गया है। आज इस सुविधा का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवाज्ञानम मुख्य अतिथि थे। उनके साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।
पोर्ट ब्लेयर के कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट कोर्ट में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा राव उपस्थित थे। उनके साथ न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारी और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। आरंभ में पोर्ट ब्लेयर सर्किट कोर्ट में न्यायिक सेवा के अधिकारी ने उपस्थिति का स्वागत किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने अपने विचार व्यक्त की। And everybody who are involved with today's program, I extend a very warm welcome to all of you. A very good afternoon to all of you. Today is a very important day as the permanent VWDC at Port Blair is being inaugurated by the Honorable Chief Justice in the presence of all the members, the stakeholders, and everybody who will get the benefit of this system. May please ensure that the system which is being put in place today is availed by everybody. मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने पोर्ट ब्लेयर में इस विटनेस डिपोजिशन सेंटर के शिलापट्ट का अनावरण कर और रिबन काट कर औपचारिक उद्घाटन किया। What is this vulnerable witness deposition center? इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवाज्ञानम ने अपने विचार व्यक्त किए। I emphasize the need to create a safe and protective environment for vulnerable witnesses, and therefore constituted a committee called the All India Vulnerable Deposition Center, and appointed Honorable Justice Geeta Mittal, the former Chief Justice of Jammu and Kashmir, as the chairman of the committee of the center, which was entrusted the task of establishing this vulnerable witness deposition centers in all the courts, in the district courts throughout the country. That is how this committee was constituted at the national level, and each of the high courts were directed to constitute separate committees. कार्यक्रम के दौरान पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट कोर्ट की गठन के इतिहास पर वीडियो दिखाया गया। May 1950 at Port Blair. That was the beginning of judiciary in Andaman and Nicobar Islands. The Honorable Apex Court realized the need for and importance of setting up facilities catering to the need for creating a safe and barrier-free environment for recording the evidence of vulnerable witnesses. अंत में न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। For establishment and inauguration of this VWDC, I thank Her Ladyship, the Honorable Justice Amrita Sinha, member of Vulnerable Witness Deposition Committee, to support me since the beginning of the constitution of the committee and providing guidance for smooth functioning of the committee, as well as also for establishment and inauguration of the VWDC at Port Blair. I thank the Registrar General of Calcutta High Court for making this program successful by deputing all the officers and the IT department for the virtual mode, so that the Honorable Chief Justice and all the Honorable Chairperson and the member shall participate and inaugurate this VWDC. पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में आज पोलिंग पार्टी और पुलिस पार्टी की रवानगी तथा ईवीएम मशीन का वितरण किया गया। पोर्ट ब्लेयर और फरारगंज तहसील के लिए मतदान सामग्रियों का वितरण आज हुआ। मतदान ड्यूटी के कर्मी सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर और मतदान सामग्रियों को लेकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हुए। इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान और निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। पोलिंग पार्टीज़ और पुलिस पार्टीज़ का डिस्पैच हो रहा है यहाँ से, तो सारी पोलिंग पार्टीज़ अपनी पोलिंग किट्स और जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको ले रही हैं, उनको चेक कर रही हैं बाकायदा,
और उसके बाद चेक करने के बाद वो अपनी जो पुलिस के जो उनके साथी हैं जो वहाँ बूथ पर तैनात रहेंगे उनके साथ मिलकर बसेस में अपने सेक्टर ऑफिसर्स के साथ रूट में जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी एक्सटेंसिव अरेंजमेंट किया है, खाने का भी प्रबंध है, साथ में जो पोलिंग ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स को जो ऑनरेरियम दिया जाता है उसका भी प्रबंध है, चाय पानी हमने वेलफेयर का काफ़ी इंतज़ाम किया है। इसके अलावा हमने हर पार्टी को एक हेल्थ किट भी दी है। अगर मान लीजिए दूर दराज के इलाके में अगर कुछ हेल्थ की इमरजेंसी आती है तो बेसिक फर्स्ट एड जो केयर है वो पोलिंग पार्टी अपने लेवल पे ही उसको कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज दोपहर तक या शाम तक सब पोलिंग पार्टीज़ अपने बूथ पे पहुंच जाएंगी। आज मैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे खड़ा हूँ। सारी पोलिंग पार्टी पुलिस फोर्सेस के लोग सब यहाँ पे हैं। ये सारी टीम आज शाम तक अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँच जाएंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो 1950 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी विजिल के माध्यम से कोई कंप्लेंट करनी है, किसी का कोई जानकारी देनी है वो दे सकते हैं। सभी से निवेदन है इन सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। इस बीच मध्योत्तर अंडमान जिले के मायाबंदर तहसील में आज चुनावी सामग्रियों का वितरण और मतदान दलों को भेजने का कार्य हुआ। जिला निर्वाचन कार्यालय से ये कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी दिलकुश मीणा की देखरेख में किया गया। क्रिटिकल, सेंसिटिव और दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्रियां और टीम को रवाना किया गया। इसी प्रकार का कार्य डिगलीपुर और रंगत सब डिवीजन में भी किया गया। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने द्वीप समूह में मतदान की तैयारियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने मतदान केंद्रों और उससे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 3,15,148 वोट हैं और टोटल 412 पोलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जिसमें 60 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल हैं, सेंसिटिव हैं, 27 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल है और 45 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो दूर हैं, उनको आइसोलेटेड पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। इन सारे पोलिंग स्टेशन में नियत जितनी पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए वो सारा इंतजाम किया गया है। सारे पोलिंग स्टेशन के लिए निर्वाचन अधिकारी अपने समय से सारे ईवीएम्स और दूसरे मशीन के साथ जा चुके हैं। इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए जो स्वीप एक्टिविटी है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया जाना है वो प्रयास किया जा चुका है। आपने देखा होगा तीनों डिस्ट्रिक्ट में सारे डिप्टी कमिश्नर्स के अंदर, आरओ और एआरओज के अंदर बहुत सारी गतिविधियां की गई हैं। नुक्कड़ नाटक किए गए हैं, वॉकाथॉन किया गया है, दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे डिपार्टमेंट्स ने भी बहुत सारा प्रयास किया है। अभी आपने हाल में देखा होगा एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, डे एंड नाइट क्रिकेट मैच का, जिसमें पूरे प्रशासन और जनता की एक टीम बनी थी और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे देखने के लिए। स्वीप के तहत इन सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए बाहर और इस बार मतदान करें। सारे मतदाता केंद्रों पर समुचित व्यवस्था की गई है। चूँकि गर्मी का मौसम है इसलिए सारे प्रयास किए गए हैं कि मतदाताओं को किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं हो, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 10 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, 9 पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ औरतें वहाँ पे सारे निर्वाचन का कार्य देखेंगी और सारे राजनीतिक दलों से भी यह अपील की गई है कि वहाँ पे जितने भी उनके पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी महिलाओं को ही दें, ताकि ये पूरा का पूरा ये जो होगा पोलिंग स्टेशन ये महिलाओं का होगा, जिसको हम लोग पिंक पोलिंग स्टेशंस कहेंगे। तो सारा प्रयास किया गया है। दूर दराज में जहाँ पर भी पोलिंग पर्सनल्स जाने हैं उन सबों को भेज दिया गया है। फिर कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग होगा और मैं फिर से पूरी जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और अपने मतदान का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र की इस महापर्व को सफल बनाएं।
अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल मतदान होगा। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पूरे द्वीप समूह में कुल 412 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3,15,148 मतदाता अपने कीमती वोट ईवीएम में दर्ज करेंगे। कल होने वाले मतदान के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज प्रेस मीट बुलाई। उन्होंने कहा कि कल के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक इलेक्शन डिपार्टमेंट का प्रयास था कि ये इंक्लूसिव इलेक्शन हो, उसमें अपने दिव्यांग भाई बहन हों या स्टूडेंट्स हों या महिलाएं हों या ओल्ड एज हों 85 प्लस, उन सबको हमने इन वन वे और दी अदर हर किसी को टच किया, हर किसी को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया। हमारे पास पोस्टल बैलेट की रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट हुई थी वो 436 थी। उनमें से 424 लोगों ने अपने होम वोटिंग के राइट का यूज़ किया और वो अभी हमारे पास आरओ साहब के पास सेफ कस्टडी में है। इसके साथ साथ ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट है, वो भी हम लोगों ने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट 30 तारीख को तैयार हुई। उसी तारीख को हमने कंसर्न लोगों को, उनके जो नोडल अधिकारी होते हैं मिलिट्री वाले, आर्म्ड फोर्सेज वाले, उनको हमने सेम डे भेज दिया। ये हमारा नंबर है 597। इनमें से हमारे पास 27-28 वोट अभी आ भी चुके हैं। ये वाले वोट हमारे पास काउंटिंग डे के 8 बजे तक आ सकते हैं। उसका प्रबंध हमने पूरा किया हुआ है। एक नोडल अधिकारी अपॉइंटेड है जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, उससे हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया हुआ है। अब रही बात कल के चुनाव की, कल डेट है। एक तो आप सबके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो जल्दी आएँ और अपने वोट के राइट का यूज़ करें, क्योंकि गर्मी का टाइम है। वैसे हमने सब पानी का प्रबंध सब चीज़ें किया हुआ है, फिर भी जल्दी आके अपना जो भी वोट है वो डाल दें। सभी नागरिकों को आप प्रेरित करें, उत्साहित करें। इसके साथ साथ इस बार हमने एक यूनिक चीज़ और की है। आरओ साहब ने सारे होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को बुलाया था, उनको प्रेरित किया कि आप जो भी वोट डालेगा, जो आपको वोट का निशान दिखाएगा, उनको कुछ डिस्काउंट दें। तो इसमें होटल वालों ने 10% से लेके 30% का खाने में डिस्काउंट देने का अपने अपने वहाँ पे पूरा एडवर्टीज भी किया है। उनके ट्विटर हैंडल पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो ये भी हमने प्रयास किया है। इस बार हम वोटर को चारों तरफ से अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो आए और अपने वोट के राइट का इस्तेमाल करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल पहले चरण का मतदान होगा। मतदान से पहले द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान, द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने द्वीप समूह के मतदाताओं से इस चुनावी पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। कल हमारा पोलिंग का दिन है। सभी से मेरी अपील है, गुजारिश है, आप भारी संख्या में अपने घर से निकलें और पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये देश का पर्व है, ये इलेक्शन का पर्व है, ये देश का गर्व है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग होगा और मैं फिर से पूरी जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और अपने मतदान का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। मतदाताओं से मेरा यही अनुरोध रहेगा जो चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी बार बार करते रहे हैं और हम लोग इसके लिए काफ़ी स्वीप की एक्टिविटी भी हमने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान में भाग लें। किसी भी तरह का उन्हें भय नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन और पूरी चुनाव प्रणाली उनके सहयोग के लिए और उनकी मदद के लिए तत्पर है और वो घरों से निकलें और अपने वोट का ज़रूर उपयोग करें और मतदान केंद्रों तक आकर अपना वोट दें।
कल 19 अप्रैल है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग होगी। सभी लोग भारी मात्रा में वोट करने आए, वोट देने आए और भारत के इस लोकतंत्र को सफल बनाएं। उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सबको पता है, कल हमारे अंडमान तथा निकोबार संसदीय क्षेत्र में मतदान होने जा रहा है 19 अप्रैल 2024 सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। मेरी सभी जिले के मतदाताओं से विनम्र अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और प्रेरित करें कि इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने और सब अपने मतदान का प्रयोग करें। स्पेशली मेरी अपील रहेगी फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना नाम एनरोल कराया है और वो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे। आप सब युवा साथी, जिले में सारे युवा साथी सभी वोटिंग के लिए आगे आए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मोटिवेट करें। चुनाव का पर्व है, हमारे लिए सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि हम सबको मतदान का अधिकार मिला है। तो इस अधिकार का, मताधिकार का आप सब प्रयोग करें। मेरी सभी युवा साथियों से, महिलाओं से और हमारे सीनियर सिटीजन से और सारे दिव्यांगजन साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोटिंग करें। हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। हमारी सारी पोलिंग टीम्स पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गई हैं। वो आप सबके लिए इंतजार करेंगी, आपका स्वागत करेंगी। और एक और बार फिर से मेरी अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर पोलिंग बूथ पर मतदान करें। आप सब 19 अप्रैल को एकदम निडर होकर मतदान के लिए निकलिए। पूरी व्यवस्था सुरक्षित और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ गलत हो रही है और आपको लग रहा है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और भारी से भारी संख्या में 19 अप्रैल को आप सब आके मतदान करें। भारत में नंबर 1 वोटिंग इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। मैं सभी से कहूँगा कि मतदान की इस प्रक्रिया में जितना अधिक से अधिक भाग लें और आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश की दिशा निर्धारित करने के लिए। तो कोई भी मतदान से अछूता ना रहे। फर्स्ट टाइम वोटर तो वैसे भी एंथुसियास्टिक रहते हैं और अब आने वाला भविष्य उन्हीं का है और उनको अपना भविष्य तय करना है। तो अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने निकलिए। और मैं तो चाहूँगा कि हमारा अंडमान हिंदुस्तान में अपने वोटिंग में नंबर 1 बने। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मतदान जो है लोगों का सुनने के लिए, लोगों के पास एक मंच है जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है सबसे कि मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन इन हंसपुरी, मायाबंदर, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान एंड इन होल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वोटर्स के लिए कि बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में एक बेटर इंडिया के लिए सही तरीके से, बिना इधर उधर किसी भी प्रेशर से, बिना किसी के बहकावे में आकर के, किसी और के थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होकर के बिल्कुल सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग वोट करें। मैं कॉलेज के तरफ से और हमारे जितने टीचर्स हैं सबके तरफ से, हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, उनको पहली बार उन लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, उनको सभी को मैं ये आह्वान करता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर इसी 19 अप्रैल में जो लोकसभा के इलेक्शंस है उसमें वोट देने के लिए वो घर से निकले और जाके बूथ में जाके अपने मतदान को अधिकार को प्रयोग करें।
पर देश का गर्व। Nothing like voting, I vote for sure। मेरे युवा साथियों, आने वाले 19 अप्रैल 2024 चुनाव में अपना मतदान जरूर करें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अपर्याप्त यात्री टिकटों की बुकिंग के चलते एमवी भारत सीमा जहाज के कल और 20 अप्रैल की स्वराज द्वीप की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इस यात्रा के लिए टिकट खरीद चुके यात्री अपने टिकट रद्द कराकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इस बीच एमवी भारत सीमा जहाज 21 अप्रैल को सवेरे 7 बजे के बजाय अब दिन में 10 बजे हैडो जेट्टी से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी भारत सीमा माया बंदर की यात्रा पर कल रात 9 बजे हैडो जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे डिगलीपुर होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 10 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय राष्ट्रपति ने कहा, हमें चुनाव उत्सव में भाग लेकर दुनिया में लोकतंत्र के आदर्श को मजबूत बनाना है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन के सेंटर का किया उद्घाटन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतदान के लिए पूरी तरह से है तैयार। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।